شہرنامے میں آپ کو خوش آمدید۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہاں آپ کو خبر دیں کہ مصطفیٰ آباد نقیب آباد کے قریب مسافر گاڑی کا ٹائر پھٹنے سے کیری ڈبہ کے ساتھ تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ افسوسناک واقعے میں مصطفیٰ آباد میں ہونے والے حادثے میں پولیس ملازم جاں بحق ہو گیا، جبکہ 15 مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہیڈ کانسٹیبل لاہور پولیس کا ملازم تھا۔ شناخت رانا عبدالرحمان کے نام سے کی گئی۔ زخمیوں میں 6 افراد کو تشویشناک حالت میں لاہور اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محکمہ سوشل سیکیورٹی گجرانوالہ ریجن اور پنجاب پاور لوم اینڈ گارمنٹس ٹریڈ یونین پنجاب کے اشتراک سے مقامی ہال میں 500 سے زائد صنعتی ورکرز کو نئے سوشل سیکیورٹی کارڈ تقسیم کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار سے۔ ہم یہاں موجود ہیں مقامی میرج ہال میں۔ یہاں آپ سے کچھ دیر قبل جو محکمہ سوشل سیکیورٹی اور پنجاب لیبر جو یونین ہے ان کے اشتراک سے ایک جو سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں جو 500 سے زائد جو نئے صنعتی ورکرز ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی گجرانوالہ عبدالواحد ڈار صاحب موجود ہیں۔ آج کے ایونٹ کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں۔ جی سر، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے صرف 550 کارڈ ایشو کیا ہے، یہ 550 فیملی کو کارڈ ایشو ہے۔ اگر آپ اس کو ملٹیپلائیں تو 3000 بندہ بینیفیشری اس پہ آ جائے گا اس کارڈ پہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ واحد ریجن ہے جہاں 93% آف دی ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے نا وہ سوشل سیکورٹی کا کارڈ بنا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ سوشل سیکورٹی کا ہر مزدور گجرانوالہ میں، وہ چاہے 60,000 ہوگا، وہ چاہے 70,000 ہوگا، وہ جتنا بھی ہوگا، ہر مزدور کے ہاتھ میں سوشل سیکورٹی کا کارڈ ہے۔ ہمارے ساتھ جو لیبر رہنما خاتون ممتاز ہو وہ بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آج کے ایونٹ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈم ممتاز اور جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، ہمارے مزدوروں کو انہوں نے کارڈ ایشو کیے ہیں۔ جی آج کا ایونٹ بہت اچھا ہوا ہے۔ ہم عبدالواحد ڈار صاحب کے اور ان کی ٹیم کے بہت مشکور ہیں۔ میں شکر گزار ہوں وحید احمد ڈار صاحب کا اور اپنا گارمنٹس یونین کا، جنہوں نے باہمی کاوشوں سے یہ پروگرام ترتیب دیا۔ ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی اور اس کے علاوہ جو لیبر رہنما ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اچھی کاوش ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان شاہد زمان ایکشن میں آ گئے۔ زائد کرایہ وصول کرنے والے 4 ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا، ایک اڈا بھی سیل کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے بیورو چیف شیخ رمضان ندیم سے۔ شیخ رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان شاہد زمان لک نے اوور چارجنگ کرنے پر، کرایہ زیادہ وصول کرنے پر 4 ڈرائیوروں کو گرفتار کر لیا، ایک اڈا بند کر دیا اور ایک بس اور 2 ویگنوں کو پولیس تحویل میں دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی گئی ہے، اس کے بعد کرایوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے۔ زائد کرایہ وصول کرنے والے بس اسٹینڈ مالکان اور ڈرائیوروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرایوں میں کمی کے پینافلیکس نمایاں جگہ پر واضح اور اویزہ کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی سخت ہدایت ہے کہ کرایوں میں فوری کمی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود موقع پر جا کر چیک کرتا رہوں گا، کرایوں میں کمی لائی جائے اور اس پر پورا عمل درآمد کرایا جائے۔ شیخ رمضان ندیم، بیورو چیف میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ ایک طرف پنجاب حکومت صاف ستھرے پنجاب کا نعرہ لگا کر شہر اور دیہاتی علاقوں میں صفائی ستھرائی کرانے میں مصروف دکھائی دیتی ہے، تو دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر کروڑ پکاش شہزادی کی نااہلی کے باعث دنیا بھر میں ریلوے پھاٹک کے قریب عرصہ دراز سے کچرا شہریوں کا منہ چڑھانے لگا۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ شہر بھر کی صفائی ستھرائی کروا کر شہریوں کے مین دنیا پورا روڈ کے قریب ریلوے پھاٹک پر ڈال دیتا ہے۔
अरसा दराज से दुनियापुर रोड के करीब रेलवे लाइन पर पड़ा कचरा शहरियों और अहले मोहल्ला का मुंह चिढ़ाने लगा। अहले मोहल्ला का कहना था कि कई बार तहसील इंतजामिया को दरख्वास्तें दी मगर हमारी दी हुई दरख्वास्तों को कचरे के डब्बे की नज़र कर दिया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर केहोड़ पक्का इरम शहजादी का ये रोज़ इसी रोड से गुजर होता है। कई दफ़ा तहसील इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए गए मगर तहसील इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ दिखाई देने लगी है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा से फौरी तौर पर इस कचरे को शहर से कहीं दूर फेंकवाने की अपील की है। रुख करेंगे खानेवाल का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक DPO इस्माइल खाड़क की जानिब से खुली कचहरियों का सिलसिला हाल जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क ने थाना सदर खानेवाल और थाना कच्चाखो में खुली कचहरी लगाई। शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी कर दिए। देखते हैं खानेवाल से साजिद गफ्फार चौधरी की खुसूसी रिपोर्ट। पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक DPO इस्माइल खाड़क की जानिब से खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। इस जमन में उन्होंने थाना कच्चाखो और थाना सदर खानेवाल में खुली कचहरी लगाई, जहां पर उन्होंने आए हुए शहरियों के मसाइल को गौर से सुना और मुतल्लिका अफसरान को शहरियों को मसाइल मेरिट पर हल करने के अहकाम जारी किए। DPO ने मुतअद्दिद दरखास्तों पर इंक्वायरी करते हुए अहकाम जारी किए और कहा कि अवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी और अमन व अमान का क़याम मेरा मिशन है और इस अज़म के तहत शहरियों की शिकायत का फौरी अज़ाला मुमकिन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद इंसाफ अवाम की दहलीज तक पहुँचाना है और लोगों की अफसरान तक बासानी रसाई को मुमकिन बनाते हुए पुलिस की कारकर्दगी में निखार पैदा करना है। उन्होंने अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा कि पुलिस से मुतल्लिका अवामी सहूलियात फराहमी में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर SDPO सदर अब्दुल हकीम, SHO राउज ईशान और SHO थाना सदर साद बिन सईद, तफ्तीशी अफसरान, मेंबरान अमन कमेटी, साफी बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी सेक्रेटरी RTA के जैद हसन ने मुख्तलिफ अड्डों का विजिट किया, जहाँ पे किराएनामे भी चेक किए गए। मज़ीद जान लेते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। आमिर नसीर, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आते ही डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की जानिब से किराएनामों में कमी कर दी है। आज डिप्टी कमिश्नर ने खुद आकर राजपूत ट्रैवल और फैसल मूव को चेक किया। बात करें डिप्टी कमिश्नर बताएगा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल कमी आते ही आपने खुद किराएनामे चेक करके क्या करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल जैसे कि आपके इल्म में है कि 16 सितंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमत में हुकूमत ने कमी की है, तो इस सिलसिले में हमने उसी दिन फिलफौर नए किराएनामे जो हैं वो नाफिजुल अमल कर दिए थे और आज उसी सिलसिले में हम ये मुख्तलिफ बस अड्डों की, वैगन अड्डों की चेकिंग कर रहे हैं। और मकसद ये है, चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये डायरेक्शन है कि जो भी फ्यूल की कीमतों में कमी के समरात हैं वो फिलफौर आवाम तक पहुँचाए जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो आवाम को रिलीफ देने का सफ़र है वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। सर, ये तहका समूह के हवाले से आपकी सरबराही में जो है वो आगाही दी जा रही है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ट्रांसपोर्ट? जी बिल्कुल, इसमें बड़ा क्लियर मैसेज है। ये जो हम जिस माहौल में इस वक्त सांस ले रहे हैं, ये माहौल हमारी बका की ज़मानत है, तो हम सब के ऊपर एक इज्तमाही जिम्मेदारी आती है कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, ताकि गाड़ियाँ जो हैं वो माहौल को परागंदा ना करें। स्मोक के ज़रिए जो गाड़ी धुआं पैदा कर रही है, सांस की बीमारियाँ होती हैं, तो सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किराएनामों में कमी कर दी है और इनका ये कहना है कि समूह के हवाले से गाड़ियों की टोनिंग कराएं, अगर कोई गाड़ी धुआं छोड़ेगी उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, पाकपतन में शदीद महंगाई से आवाम परेशान, हुकूमत वक्त से महंगाई में कमी की अपील कर दी। तफसीलात राना खादिम अली की रिपोर्ट में। पाकपतन में बढ़ती हुई शदीद महंगाई से दर्जियों का कारोबार भी मुतासर हो गया। दर्जियों ने शिकवा करते हुए कहा कि अवाम 2 वक्त की रोटी से महरूम है, सूट कहाँ से सिलवाएं, कारोबार ना होने से वो फाका कशी पर मजबूर हैं। बिल्कुल, मुल्क भर में कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, महंगाई, सब्जियां, फ्रूट सब महंगाई है और इस हवाले से जो बिजली महंगी हो रही है, इस वजह से लोगों को एक तो रोज़गार नहीं मिल रहा, दूसरा उनको घर के खर्चे अफोर्ड नहीं हो रहे। अगर हम मार्केट जाएँ, सूट ले 1500 रुपये का, आगे सिलाई होती है 1800, 2000, क्योंकि बिजली महंगी हुई है। वो टेलर मास्टर भी मजबूर हैं, वो क्या करें, वो भी परेशान हैं। हमारा घूमते वक्त से मुतालबा है कि बिजली के रेट को भी कम किया जाए, पेट्रोल, तमाम तर महंगाई को काबू किया जाए, ताकि पाकिस्तानी शहर इस वक्त का सांस लें और अपनी ज़िंदगी को आसानी तरीके से गुजार सकें।
महंगाई बहुत ज़्यादा है तो गाहक आ नहीं रहा जे कोई गाहक आंदे तो वो 2-3 महीने सूट पै रहे तो लै नहीं आता शाम में साल को खर्चा मंगिए तो साथ देना नहीं। इस वास्ते हुकूमत ने अपील है कि महंगाई घट की जाए। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे मार्केट लोग गाहक आ नहीं रहे जी, कोई आना कपड़े लेते वो वापस चुककर नहीं आ रहे जी, बड़े हालात ख़राब चल रहे हैं जी मार्केट से। इसके बारे को सोचे कैमरा टीम के साथ राना खादम अली, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। खबर दें आपको कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन चेन्नई के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कैसर अली भट्टी से। कैसर भट्टी बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम तो कर दी गई हैं, मगर ट्रांसपोर्ट हजरात की जानिब से किराए में कमी नहीं की गई है। सरकारी नरखनामे पे जो है किराया वसूल नहीं किया जा रहा है। इस वक्त मैं चिन्नौर के बड़े लारी अड्डे में मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि किराए की कीमतें के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी पेट्रोल में महकमा हुकूमत की जानिब से जो है ना पेट्रोल में कमी की जा रही है, लेकिन जो है ना ट्रांसपोर्टर हजरात वो किराए में कमी नहीं कर रहे। किराए में कमी हुकूमत से मुतालबा करते हैं मेहरबानी करके किराए में कमी की जाए ताकि हमारा सफ़र आसानी से गुजरे। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का ये कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि किराए में कमी की जाए ताकि हम शहरी जो है वो आसानी से जो है वो सफ़र कर सकें। शेरगढ़ के नवाही इलाका 23-1AL गाँव समेत मुतअद्दिद आबादियों के टूटने की वजह से पिछले 48 घंटों से राब्ता मुनक़ता है। शेरगढ़ के नवाही गांव में गुज़िश्ता 48 घंटों से 11 kV की तारें टूटने के बायस बिजली मुनक़ता हुई, जो ताहाल बहाल नहीं हो सकी। बिजली मुनक़ता होने से 23-1L गाँव समेत मुतअद्दिद आबादियों को मुश्किलात का सामना है। बिजली की बंदिश से घरों मस्जिदों में पानी ख़त्म होने से लोगों को जुमे की अदायगी में मुश्किलात है। इलाका मकीन पीने वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मुसलसल बिजली की सप्लाई मअतल रहने से लोगों के जानवर भी भूखे और प्यासे रहने लगे हैं। रोड पर पड़ी तारें स्कूल वैन और दीगर ट्रैफिक से टकरा कर किसी वक्त भी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। मामला हुकाम को कई बार इतला देने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सके। इलाका मकीनों का हुकाम वाला से फौरी नोटिस का मुतालबा सामने आया। सियालकोट जिला इंतजामिया की दबंग कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक आर्जी और मुस्तकिल तजावुज़ात को हटाने के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जिला कौंसिल इंतजामिया ने सियालकोट गंगरू रोड पर गैर कानूनी दुकानों को मिसमार करके अराजियों गुजार वाली डी और रेगुलराइजेशन जिला कौंसिल राना अकील महमूद का कहना है कि अड्डा खैराना पर जामे मस्जिद की जगह पर कब्जा माफिया ने गैर कानूनी दुकानें तामीर कर रखी थी, जो डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला कौंसिल सियालकोट के रेगुलेशन ने नाजायज़ दुकानों को मिसमार करके मस्जिद की जगह वागुजारी करवा दी है। रुक करेंगे जहानिया का, जहां पर ट्रॉलर ड्राइवर से मुबैना के वीडियो क्यों बनाई पेट्रोलिंग पुलिस परवेज़ वाला का, मुकामी सहाफ़ी पर मुबैना तशद्दुद। पेट्रोलिंग पुलिस अड्डा परवेज़ वाला के ट्रकों को रोक कर मुबैना डिक्टिंग की वीडियो बनाने पर मुकामी सहाफ़ी ज़ैन यूसुफ को ज़दोकोब करते रहे। कैमरा भी छीन लिया और फिर 4 घंटे तक हब्स बेजा में रखा। पेट्रोलिंग पुलिस के ड्राइवर का वीडियो डिलीट करने की धमकियाँ ना करने पर अपना गिरबान फाड़ दिया और मुकामी सहाफ़ी ज़ैन यूसुफ पर झूठी FIR दर्ज करने की धमकियाँ देता रहा। जहानिया सहाफ़ियों की और एहतजाज की कॉल पर पेट्रोलिंग पुलिस दीवार फलांग कर फरार हो गई। खाकरा डोगरा के गांव सहवाला में शानदार बैनुल सूबाई कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। बैनुल सूबाई कबड्डी टूर्नामेंट में नेशनल लेवल के प्लेयर्स शरीक हुए। मेहमान खुसूसी चौधरी शफीक अहमद, जड़ SSO बख्तियार भट्टी की आमद पर इंतजामिया और तमाशाइयों ने फूलों की पत्तियां फेंकी और नोटों की बारिश कर दी। टूर्नामेंट में नेशनल लेवल की कबड्डी क्लब के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। गिरदोनवा के देहातों से आए सैकड़ों अफराद ने मैच देखा। कांटेदार मुकाबले के मैच में फतह अपने नाम करने वाली टीम को 1 लाख रुपए नकदी और ट्रॉफी दी गई, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली टीमों को 50,000 रुपए नकदी और ट्रॉफी दी गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी शफीक जट ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।
कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का डीसी मोहम्मद अली बुखारी के हमरा खानेवाल में हायर सेकेंडरी स्कूल मखदूमपुर का दौरा। कमिश्नर मुल्तान ने स्कूल की इमारत और तदरीसी अमल का जायज़ा लिया। क्लासरूम में जाकर तलबा से मुलाकात की। डीओ सेकेंडरी को कमरों में रोशनी का मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत की और तारीख़ अहमियत की इमारत की बेहतरी के लिए महकमा तालीम के हुकाम से प्लान तलब कर लिया। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का कहना था कि स्कूल काउंसलर्स के प्लेटफॉर्म से तालीमी इदारों की हालत बेहतर की जाएगी और तालीमी नताइज की बेहतरी के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जम में हनी ट्रैप का पर्दा फाश हो गया। 2 खवातीन समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। डीपीओ जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेर क़यादत जराइम के खिलाफ पुलिस इन एक्शन सिटी से हनी ट्रैप के जरिए लोगों से रकम बटोरने वाला 3 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान सादा लोग शहरियों को शादी का झांसा देकर हनी ट्रैप के जरिए भारी रकम बटोरते थे। कच्चे के डाकू बेलगाम हो गए। घोटकी आज भी डाकुओं के रहम करम पर थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी के हदूद से 2 भाइयों को डाकू ने अगवा कर लिया। थाना रौंदी के हदूद से 2 सगे भाइयों नसरुल्लाह चांडियो और यूनुस चाचड़ को मवेशियों समेत डाकुओं ने असलहे के जोर पर अगवा कर लिया। बुरसा की जानिब से शहीद वैन मोहम्मद लगारी थाने पर अगवा की इतला के बाद चाचड़ बरादरी बड़ी तादाद में कच्चे में उतर गए। बुरसा का कहना था कि हमारे नौजवानों समेत डाकू हमारे 50 से ज़ायद मवेशी भी ले गए, जबकि रौंती पुलिस का कहना है कि 2 अफराद के अगवा की इतला मौसूल हुई, जिस पर कच्चे की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की जानिब से निगरानी जारी है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन की हिदायत पर जिला कौंसिल का गैर कानूनी कब्जा माफिया और तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। राणा घराना गैंगरू रोड गैर कानूनी दुकानों को मिसमार कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव का ननकाना साहिब के ताजिरों को 2 टोक पैगाम, कहा कि 25 सितंबर तक तमाम तजावुजात ख़त्म करने के अहकामात ना मानने वालों को भारी जुर्माने आयद करके मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर रा की ज़ेर सदारत तजावुजात के खात्मे से मुतालिक अहम इजलास DC कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। ज़िले अफसरान समेत ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक थे। DC ननकाना साहिब ने ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे की दरख्वास्त और यकीन दहानी पर ज़िले अफसरान को नाजायज़ तजावुजात के खिलाफ 25 सितंबर तक कार्रवाई ना करने की हिदायत जारी कर दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे चिन्योट का, जहां पर सरगोदा रोड मंडी शेख कब्रिस्तान से रात गए 3 बच्चों की मैयतें गायब हो गई। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। चिन्योट में कब्रों से बच्चे गायब होने का मामला है। मंडी शेख कब्रिस्तान में नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर बच्चों को कब्रों से निकाल कर कफन कब्रिस्तान में ही फेंक दिए। कब्रों से गायब होने वाले बच्चों के लवाहिकीन की तलाश जारी है। शहरियों का कहना है ये जादू टोने करने वालों का काम हो सकता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा शाहिद इमरान मार्ट का शो के मुख्तलिफ बस और वैगन स्टैंड्स का अचानक से दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुकर्ररा किराया नामा, सफाई सुथराई और गाड़ियों में ओवरलोडिंग का जायज़ा लिया और ज़ायद किराया वसूल करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुसाफिरों को 5500 रुपये किराया वापस भी करवा दिया। इस मौके पर ADC मियाँ जमील, RT सेक्रेटरी हिना रहमान समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुसाफिर गाड़ियों में मुकर्रर करदा किरायाजात और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का मजीद कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी मुसाफिर से ज़ायद किराया वसूल नहीं करने दिया जाएगा।
पाकिस्तान मीडिया सर्विसेज कसूर के दफ्तर में मुकामी MPA की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में सहाफ़ियों समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। आपको बताएं, कसूर मीडिया सर्विसेज दफ्तर में मुकामी MPA मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग कमेटी और मेंबर LDA गवर्निंग बॉडी हाजी मोहम्मद नईम सफ्तर अंसारी की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रेंड्स के सीनियर सहाफ़ियों जिनमें अफजल नामी भट्टी, मोहम्मद तनवीर शाह, सईद अजमल भट्टी, मोहम्मद इरफान म्यू समेत दीगर सहाफ़ी कारकुनान ने शिरकत की। MPA नईम सफदर अंसारी की लंबी उम्र की दुआ की गई और उनकी शहर कसूर के अवाम के लिए की जाने वाली खिदमात को सराहा गया। कबीरवाला के SHO 12 मील इंस्पेक्टर आसिफ चौहान ने अपनी टीम के हमरा 3 रुकनी डकैत गैंग पकड़ लिया। 10 मुकदमात ट्रेस करके माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार डकैतों से 3 अदद पिस्तौल और 1,25,000 का माल मसरूका बरामद कर लिया। डकैत गैंग से डकैती के 10 मुकदमात में छीना गया माल भी बरामद कर लिया गया। DPO खानेवाल के इंस्पेक्टर आसिफ चौहान और हमराही टीम को शाबाश। इस मौके पर SHO 12 मील का कहना था कि DPO खानेवाल इस्माइल की सरबराही में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला ताहाल जारी रहेगा। अपने इलाके को जराइम से पाक करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नारेवाल से खबर शामिल करते हैं। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की तकरीब का आगाज़ हो गया। बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। बरसी में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। दुनिया भर समेत मुल्क भर से 10,000 से ज़ायद यात्री और दरबार पहुँचे हैं। राहदारी के ज़रिए भारतीय यात्री भी बरसी की तकरीबात में शरीक होंगे। DPO मंडी बहाउद्दीन अहमद मोहिउद्दीन की हिदायत पर सदर पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुहिम जारी है। DPO अहमद मोहिउद्दीन ने थाना सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि क्रैकडाउन के दौरान 6 डकैत गैंग के सरगनों समेत 27 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से 42 तोला तलाई जेवरात, 42 मोटरसाइकिलें, 24 माल मवेशी, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली, 4 लोडर्स रिक्शे, 1 हाईएस वैन और 2 कारें बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दी गई। मनशियात फरोशों से 200 लीटर शराब, 42 किलोग्राम चरस, 1123 बोतल शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। DPO ने मजीद बताया कि थाना सिटी, थाना सदर, थाना सिविल लाइन और कंटिया लीत शेखा ने क्रैकडाउन के दौरान 71 मुकदमात में मतलूब डकैत गैंग गिरफ्तार करके 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का मसरूका माल बरामद करके असल मालकान के सपुर्द कर दिया। जबकि मनशियात फरोशों और इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 151 इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। इस मौके पर DPO अहमद मोहिउद्दीन ने आला कारकर्दगी पर पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम किए। खानेवाल पुलिस ने 15 माह बाद कत्ल का सफाक मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कमर जिलानी ने मुमताज़ सोनिया से घर वालों से छुपकर दूसरी शादी की हुई थी। आपको बताएं कि सफाक बाप मुलजिम कमर जिलानी ने अपने 1 साला बेटे शबान को गड़ा मोड़ शहर में फेंक दिया था और अपने दोस्त मोहम्मद हुसैन की मदद से अपनी बीवी का तेज़ धार आले से गला काट कर 6615L में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। कत्ल का मुकदमा थाना छपकलास में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज था। थाना छपकला में पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। गुजरात चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के सदर के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद चैम्बर एग्जीक्यूटिव कमेटी के 21 में से 15 मेंबरान ने मुखालफत में वोट डाला। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना नज़ीर। जी राना नज़ीर बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरात चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के साबिक सदर जो थे मोहम्मद फराज के खिलाफ करारदाद आज पेश की गई है तहरीक अदम इत्माद की, और मेरे साथ आसम इश्ताक भट्ट हैं जिन्होंने करारदाद पेश की। जी क्या वजह थी जो आपने ये करारदाद पेश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں یہ قرارداد جو ہم نے پیش کی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو بہت ضروری اور اہم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی ایز اے ممبر اس میں کام کیا ہے۔ اکاؤنٹس کمیٹی نے جو ترجیحات، جو اپنی سفارشات پیش کی تھی ریگارڈنگ اس کا آڈٹ کروانا، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل آڈٹ، وہ بھی ہم نے سجیسٹ کیا تھا، اور اکاؤنٹس کے حوالے سے اکاؤنٹ جو بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں وہ کھولنے کے حوالے سے بھی ان سے کافی دفعہ استفسار کیا۔ جو بھی سفارشات پیش کی ان پر کوئی عمل، وہ اتنی نااہلی یا اتنی کہہ لیں کہ ہٹ درمی کی وجہ سے یہ الیکشن پروسیس کا ٹائم گزرا ہے، اس وجہ سے ہم نے اب ان ہاؤس تبدیلی سے کہتے ہیں، ہم نے ان ہاؤس تبدیلی کی ہے اور ڈیموکریٹک طریقے سے، اور انشاءاللہ اب ہم اس کو ہاؤس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے، اور نیکسٹ میٹنگ میں ہم انشاءاللہ نئی کابینہ کا اعلان کر دیں گے۔ جی نیکسٹ اجلاس میں نئی کابینہ کا چناؤ بھی کیا جائے گا اور اعلان بھی کیا جائے گا۔ جی صادق آباد پولیس حکومت پنجاب کے وجن منشیات سے پاک پنجاب پر گامزن احمد پورنما پولیس نے 2 بین الصوبائی ڈرگ ڈیلرز گرفتار کر کے 1 لاکھ لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان ٹینکرز کے ذریعے مختلف شہروں میں شراب کی ترسیل کا مکرو دھندا کر رہے تھے۔ پولیس نے منظر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے شراب سے بھرے دونوں ٹینکرز قبضے میں لے لیے۔ گرفتار ملزمان میں خانیوال کا مبین اور شہباز پور کا ابرار چارجر شامل ہیں۔ پولیس ٹیم نے برآمدہ شدہ شراب کے ٹینکر قبضے میں لے کر ملزمان کے خلاف مقدمات کر لیے۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ اور منشیات پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خون سفید ہو گیا یا برداشت کی کمی ہے؟ وزیر آباد کے علاقہ گکھڑ میں گھریلو ناچاکی پر بیٹے نے سگے بھائی اور باپ پر چھریوں کے وار کر دیے۔ وزیر آباد میں بیٹے کے ہاتھوں چھریاں لگنے سے باپ بیٹا شدید زخمی ہو گئے۔ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے تشویشناک حالت میں دونوں باپ بیٹوں کو DHQ اسپتال گجرانوالہ ریفر کر دیا۔ گکھڑ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں بلدیہ اٹک کے لون میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ محفل نعت کے مہمان خصوصی خاتون اسسٹنٹ کمشنر تحصیل اٹک شگفتہ جبین تھیں، جبکہ اس موقع پر دیگر مہمانان گرامی میں نگراں اعلیٰ ڈسٹرکٹ مرکزی سیرت کمیٹی رجسٹرڈ ڈانک حاجی محمد الیاس، نائب نگراں اعلیٰ راشد الرحمان خان، جنرل سیکرٹری ندیم رضا خان، ڈپٹی جنرل سیکرٹری شہزاد انجم بٹ، چیئرمین نعت کونسل اٹک ڈاکٹر عرفان احمد قادری، سابق چیئرمین بلدیہ اٹک ناصر محمود شیخ اور دیگر موجود تھے۔ تقریب میں اسٹیٹ سیکرٹری کے بہترین فرائض سینئر ہیڈ کلرک بلدیہ اٹک راجہ زاہد حسین نے انجام دیے۔ محفل نعت کی تقریب میں صحافیوں، بلدیہ اٹک کے ملازمین اور معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آستانہ قادریہ کلندریہ پر 19ویں سالانہ محفل میلاد بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کی صدارت سجادہ نشین دربار رانجھا سرکار سائیں محمد پرویز قادری نے کی۔ مزید دیکھیں گے بھکر سے غلام یاسین کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ آستانہ عالیہ قادریہ کلندریہ ہانساوال بکھر میں 19ویں سالانہ محفل نعت و سما بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں مریدین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ محفل پاک کی صدارت سائی محمد پرویز قادری نے کی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ملک کے نامور نعت خانوں نے گل عقیدت پیش کی۔ ملک کے نامور قوال جمیل احمد صابری و ہم نوا آف چیچا وطنی، قوال شمس الدین خان و ہم نوا فیصل آباد نے والی پیش کی۔ سائی محمد پرویز قادری کا کہنا تھا، آنے والے سال میں ہم اس سے بھی بہتر انداز میں آقا کریم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم کا جشن عید میلاد النبی منائیں، تاکہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اسوہ حسنہ کو اجاگر کریں، تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں ایک تغیر آئے، لوگوں کی زندگیوں میں
अच्छी रहनुमाई आ सके। तो ज़रूरी अहकामात इस्लाम हैं वो लोगों को आस्ताना आलिया कादरिया हांसा वाले पे सिखाए जाते हैं। जमील अहमद फाबरी व हमनवा और शमसुद्दीन खान व हमनवा ने कवाली पेश करके समा बांध दिया। सेक्रेटरी आस्ताना कादरिया कलंदरिया मोहम्मद अल्ताफ की तरफ से महफिल पाक के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। महफिल के शुरू और इख्तिताम पर लंगर का वसी एहतमाम किया गया था। साथ ही कैमरामैन के साथ गुलाम यासिन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। सिलसिला रबीउल अव्वल रहमानगढ़ में हुजूर की विलादत की खुशी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। तकरीब में कुरानदाजी के जरिए मुकम्मल उम्रा पैकेज भी रखा गया। महफिल पाक में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की ये रिपोर्ट। हजूर आप जहाँ में तशरीफ़ लाए तो जहाँ में पाकीज़गी आ गई। रहमानगढ़ की मारूफ समाजी शख्सियत एडवोकेट टैक्स बार राव सनवर अली गोगी ने हजूर की विलादत बासादत का जश्न शान शान तरीके से मनाया और रहमानगढ़ में अजीमुल शान महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकात किया। अजीमुल शान महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजूर की शान में गुलाह अकीदत के फूल पेश किए और उलमा कराम ने हजूर की सीरत तैयबा और सुन्नत रसूल पर अहमर पैरा होने पर रोशनी डाली। महफिल पाक में एक खुश नसीब को कुरानदाजी के ज़रिए मुकम्मल पैकेज के साथ उम्रा पर भेजा जाता है। रहमानगढ़ के रहायशी इफ्तिखार नामी शख्स के नाम कुरान निकला और मुकम्मल पैकेज के साथ भेजा जाएगा। महफिल पाक में अली सैफुल्लाह राव समेत इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया, सबसे पहले अल्लाह पाक सुभान ताला का शुक्रिया कि उन्होंने 12वीं सालाना महफिल मिलाद मेरे प्यारे आका और सबके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में मेरी इससे बड़ी खुशबख्ती क्या होगी। और ये तो अल्लाह ताला ने हमारा एक ज़रिया बनाया हुआ दोस्तों का कि नबी है जो रोज़ सनवर अली गोगी की तरफ से हर साल इनेकाद किया जाता है। उम्रे का मुकम्मल पैकेज दिया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं भी नियत करके आया था, हम दोपहर बैठे भी रहे तो इस सिलसिले में बातें करते रहे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने हमारी सुन ली। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिताम पर खुश नसीब उम्रा पैकेज कुरानदाजी में निकलने वाले इफ्तिखार नामी शख्स को उम्रा पैकेज दिया गया। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत की सलामती और हाज़रीन महफिल के जायज़ मकासिद और राव सनवर अली गोगी के वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी कराई गई। टीम के साथ साजिद गफ़ार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।